They're ringing to symbolise that the coffin of Lady Diana is leaving Buckingham Palace and is en route to the service that will be held at the church. Mourners line the street, numbering in the thousands. Diana touched the lives of so many in her 36 years, and people of all backgrounds take her loss heavily. The tears at her funeral flow with intensity as the crowds come to terms with the finality that this event signifies. Though the English are well known for their stiff upper lip mentality, in this circumstance, that mindset is left behind. Today is September the 6th, 1997. It's been a week since the tragic news of Diana's fatal car crash shocked the world, and her funeral service is set to begin shortly. Here, her family. Prince Charles, divorced from Diana for a year and separated unofficially for 4. William, wrestling his emotions as the cameras and paparazzi encroach on this most private moment. Diana called him her little wise old man. He's 15. Harry, he's just 12 years old. He always wanted to have a normal life, and instead he has to stand here, stifling his grief. The cortege makes its way down the Mall and towards Westminster Abbey. People throng the avenue and throw flowers at the procession, the sound of horses' hooves resounding in the respectful silence. The mourners have come from all over for this historic funeral. The televised broadcast reached 32.1 million people in the UK and 2.5 billion people all over the world. It remains one of the most viewed events to this day. The funeral procession marches on, with Prince Charles, Prince Harry, Charles Spencer, Di's brother, Prince William, and Prince Philip behind. It was Harry and William's special request to walk behind their mother's casket as it pushed on towards the Abbey. What courage. Prince Harry, one beat ahead of the others, eager for all this to be over. The crowds look on solemnly as the family walk past. At Westminster Abbey, the guests are arriving. Elton John, who will sing Candle in the Wind, altered in tribute to Di, with new lyrics including Goodbye England's Rose. Hillary Clinton and Queen Noor of Jordan. Tom Conti, Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg, and Tom Hanks. Sting. Princess Diana meant so much to so many. Sian Kidd, Diana's mother, takes her place in the Abbey with Diana's sister, Lady Sarah McCordale. Sian made the powerful statement, "I thank God for the gift of Diana, and for all her loving and giving, I give her back to him, with my love, pride, and admiration, to rest in peace." And now, the Queen. She was accused of being particularly cold in her reaction, or lack of one, to Diana's death. This is one of the few times that the general public has been openly angry at the monarch, and her initial refusal to leave Balmoral Castle and return to London to mourn. The Queen was adamant that she should remain with her grandchildren and shelter them from the media onslaught. However, the Union Jack was flown at half-mast even without Her Majesty's presence at the palace, a very rare honour. Inside Westminster Abbey, the Queen walks with the Dean of Westminster, Wesley Carr. The Archbishop of Canterbury has no authority in the Abbey, a peculiarity meaning that the Dean will officiate the service. The cortege continues its journey to the church. The coffin is adorned in a flag with the royal standard. On top, white lilies, Diana's favourite flower. The horse-drawn casket enters the Abbey grounds, and pallbearers lift it inside. This great honour was bestowed on 8 Welsh guards, and they were led by Captain Richard Williams, the chief mourners following behind. Here, the casket enters through the great west doors, and everyone rises to sing the national anthem. Amidst all the splendour and ceremony, one thing in particular stands out: the single handwritten word on a white envelope on top of the coffin.
Mummy. To so many people, Diana was an icon, a legend. To Harry and William, she was a mother. The funeral lasts an hour from 11 to noon and includes a sermon by the Dean, Elton John's piano-accompanied song, and Tony Blair's recital of 1 Corinthians chapter 13. The casket is carried out of the church, and the royal family and guests are ushered out. The pallbearers lower Diana's coffin with the utmost care into a hearse. Finally, Diana, the people's princess, is driven through London to her final resting place. Onlookers adorn the car with flowers as it heads towards Althorpe Park. There are crowds along the street almost the entire journey. It is her family's wish that her burial ground be somewhat inaccessible to the public, for its safety. And so, she will be buried in the Round Oval, a small island in the centre of a lake in the park. The lake is filled with white water lilies and is surrounded by 36 oak trees, one for each year of her life. ब्रिटिश राजशाही के कई महलों में से एक है लंदन का केंसिंगटन पैलेस। बड़ा सा महल है, बहुत से कमरे हैं, एक बड़ा सा गार्डन भी है। साल 1997 में इस महल के बगीचे में एक रोज अजूबा हुआ। बगीचे में फूल खिला करते थे, बहुत से फूल, लेकिन फिर भी गिनती के। एक रात आई और बीत गई। अगली सुबह बगीचे में इतने फूल थे कि 5 फुट का एक आदमी उनमें दफन हो सकता था। वजन के हिसाब से लगभग 15 टन फूल। गिनती की जाती तो लगभग 6 करोड़ फूल होते, 1 करोड़ गुलदस्ते। इतने फूल दुनिया में एक जगह पर न कभी देखे गए थे, न कभी आगे देखे गए। लेकिन असल में वो फूल के खिलने की नहीं, मुरझाने डायना की। 31 अगस्त 1997 की रात डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ये महज एक हादसा ही था? जिंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित हुई, नाम डायना अ मदर, अ लाइफ एंड लेगेसी। इस डॉक्यूमेंट्री में डायना के बड़े बेटे प्रिंस विलियम कहते हैं, मोटरसाइकिल में बैठे 30 लोग मेरी माँ के पीछे लगे रहते थे। कभी रास्ता बंद कर देते, कभी थूक देते, कभी गाली देते ताकि कोई रिएक्शन आए। कभी कभी वो माँ को रुलाने की कोशिश करते ताकि उनके तस्वीर राजकुमार थे, एयर पैरेंट यानी ब्रिटेन के अगले राजा। लेकिन लोगों की नजरें डायना पर चस्पा थीं। उसी दिन अखबारों को यह समझ आ गया और प्रेस को कि यह चेहरा नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। डायना की तस्वीरें खींची गई, इतनी कि जितनी पहले कभी किसी की नहीं खींची। तलाक हुआ, ब्रिटेन के सबसे ताकतवर परिवार में स्कैंडल हुआ, तथाकथित पत्रकारों के झुंड डायना के पीछे पड़ गए। डायना जहां जाती, मोटरसाइकिल्स का एक जत्था उनके पीछे होता, पपराजी। प्रसिद्धि ने डायना की जिंदगी को नरक बनाया, लेकिन ये फिर भी उस नरक से बेहतर जिंदगी थी जो पिछले 15 साल उन्होंने गुजारी। उनका पति किसी और से प्रेम करता था, किसी और से शादी करना चाहता था। डायना से शादी एक समझौता बन गई थी दोनों पार्टीज के लिए, इसलिए तलाक के बाद डायना ने तय किया कि वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगी। 1997 का साल आया। उस साल डायना की एक और तस्वीर खींची गई जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये तस्वीर लगभग 500 करोड़ रुपए में बिकी। क्या था इस तस्वीर में? डायना एक याट पर बैठी थी, लेकिन उनके साथ एक शख्स और था। इस शख्स का नाम था डोडी फायद। इजिप्ट के एक बड़े रईस मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, लेकिन दोनों के बीच नजदीकी बरस महीने में लंदन के तमाम पपराजी ओवर टाइम पर थे। डायना की एक झलक मालामाल कर सकती थी, इसलिए सभी इस फिराक में थे कि किसी तरह एक फोटो मिल जाए। डोडी के साथ मिल जाए तो कहने ही क्या। इसी लालच के फेर में अगस्त महीने की 31 तारीख एक भयानक हादसे की गवाह बनी। 30 और 31 अगस्त के बीच क्या क्या हुआ, इस पर गौर डालिए सिलसिलेवार तरीके से। 30 अगस्त 1997 शनिवार का दिन था। डायना और डोडी का विमान इटली से पेरिस के लिए उड़ान भरता है। दोनों छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। आगे लंदन जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले दोनों के एक दिन पेरिस में गुजारने का फैसला किया उन्होंने। शाम के 4:30 बजे पेरिस के रिट्ज होटल के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से डायना और डोडी फायद उतरते हैं। होटल डोडी के पिता का था। सुरक्षा कड़ी थी, इसके बावजूद डायना और डोडी को पीछे के रास्ते होटल में दाखिल होना पड़ता है। दोनों के लिए एक इंपीरियल स्वीट बुक था। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद करीब 5:45 बजे डोडी फायद होटल से बाहर निकलते हैं। उनकी किताब द डे डायना डाइट के अनुसार डायना और डोडी ने उस रात पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट
बेनो पेरिस में रिजर्वेशन कराया था, लेकिन वहां तस्वीर खींचने को लालायित पपराजी इकट्ठा हो चुके थे। इसलिए दोनों ने रिजर्वेशन कैंसिल किया और रिट्स के ही एक रेस्टोरेंट में जाकर वो बैठ गए। यहाँ भी फायद को शक था कि कस्टमर की शक्ल में 2 फोटोग्राफर बैठे हुए हो सकते हैं, इसलिए दोनों ने वेटर से कहा कि उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दें। इसके बाद दोनों ओडी और डायना होटल से निकल चुके थे। दोनों एक काली मर्सिडीज में सवार थे, जिसे होटल का एक सिक्योरिटी ऑफिसर हेनरी पॉल चला रहा था। पॉल ने शराब पी रखी थी और बाद में उसके खून के सैंपल में डिप्रेशन की दवाइयां भी मिली। इन तीनों के अलावा डोडी का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी उनके साथ था, जो की मौत महज 36 साल की उम्र में हो गई थी। राज परिवार का हिस्सा न होकर भी वो ब्रिटेन की सबसे चर्चित हस्ती थी और लोगों में बहुत लोकप्रिय भी। बीबीसी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि डायना की मौत के बाद उनके लंदन के निवास स्थान केंसिंगटन पैलेस में इतने फूल आए थे कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। लोग सड़कों पर रो रहे थे। सारा इल्जाम अखबारों पर डाला जा रहा था। लोगों का मानना था कि एक्सीडेंट की वजह वो पपराजी थे जो डायना। यहाँ से हम इस घटना से जुड़ी उस टेरिटरी में दाखिल होते हैं जो किसी भी हाई प्रोफाइल मौत के साथ नत्थी हो जाती है, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। डायना की मौत या हत्या की कोई साजिश थी, ये पूछा जाने लगा। इस सवाल को लेकर 30 साल बाद भी किताबें छपती हैं, लेख लिखे जाते हैं। ऐसा मानने वालों की कोई कमी नहीं है जो डायना की मौत में गड़बड़ी को देखते हैं। क्या इन थ्योरीज में कोई दम है? ये बात पूरी तरह से शायद ही कभी सामने आए, लेकिन कॉन्स्पिरेसी का तर्क क्या है ये आपको हम बता सकते हैं। सबसे पहले बात ब्रिटिश राज परिवार की। साल 1995 में डायना का एक इंटरव्यू बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के कुछ रोज बाद डायना ने अपने एक बावर्ची को एक नोट दिया था, जिसमें लिखा था, कोई मेरे एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहा है, मेरी कार का ब्रेक फेल हो सकता है, इसके बाद ही उसके चार्ल्स की शादी का रास्ता साफ हो पाएगा। चार्ल्स कमिला पाकर नाम की एक महिला से शादी करना चाहते थे, भविष्य में की भी उन्होंने। जहां तक दोनों की शादी का सवाल था, डायना से तलाक के बाद चार्ल्स उनसे शादी कर सकते थे, कोई कानूनी अड़चन थी नहीं। लेकिन एक बात यह भी सच थी कि ब्रिटेन की जनता की पूरी सहानुभूति डायना के साथ जुड़ी हुई थी। डायना की मौत के बाद भी लोग राज परिवार से काफी नाराज थे। कारण, डायना की मौत के 5 दिन तक महारानी एलिजाबेथ ने इस पर कुछ कहा नहीं, और जब कहा भी तब भी उनका बयान काफी रूखा सूखा माना गया। उस वक्त द एक्सप्रेस नाम के एक अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर रानी की तस्वीर छापते हुए हेडलाइन दी थी, शो अस यू केयर। डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद ने तो सीधा राज परिवार पर हत्या का इल्जाम ही लगाया। उनके अनुसार डोडी और डायना ये घोषणा करने वाले थे कि दोनों की मंगनी हो गई है और इसी को रोकने के लिए दोनों की हत्या करवाई गई। मोहम्मद अल फायद ने प्रिंस फिलिप को इस साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया था। महाराज में शक की एक सुई ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की तरफ भी घूमी। रिचर्ड टॉमलिंसन नाम के एक पूर्व MI6 अफसर ने जांच एजेंसियों के सामने यह दावा किया कि गाड़ी का ड्राइवर हेनरी पॉल और बॉडीगार्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। टॉमलिंसन के अनुसार MI6 डायना पर नजर रख रही थी और जिस प्रकार डायना की मौत हुई थी, कुछ वैसा ही प्लान MI6 ने सर्बिया के राष्ट्र। No one realized George was actually Kate's favorite. He means the world to her. When you have 3 kids, it's hard not to have a soft spot for one, and for Kate, that's George. A lot of parents naturally dote on their firstborn, and Kate's no exception. When Kate first joined the royal family, she often felt uneasy and feared being cast aside. So getting pregnant was a blessing. Having an heir would solidify her position. Eventually, Kate gave birth to her first child, George, and poured all her love into him. When George was little, Kate would constantly hold him, her eyes filled with affection. As he got older and she could no longer carry him, she still rarely let him out of her sight. Even after having more kids, Kate was often seen holding George's hand during family outings. Maybe it's also because George, as the future king, has to maintain a certain image, and Kate knows she won't be able to be this close to him forever. Fortunately, even though Kate adores George, she hasn't spoiled him. She's raised him incredibly well. There's no doubt George is a dependable big brother and a promising heir. Whenever the Wales family appears in public, George is quietly looking after his young. No one realized Diana married the wrong prince, but Edward's eyes proved it all. On Diana's wedding day, she looked angelic in her gown, but Charles's gaze held no love. In the stark contrast stood Prince Edward. As Diana walked past, Edward, just behind her, looked completely struck, his eyes trailing the angel in white. After all, who could possibly resist Diana's charm? Maybe in that moment, Edward wished he were the lucky groom instead. Honestly, in both age and appearance, Edward and Diana seemed like a much better match. Just imagine how much happier Diana's life might have been if she had married him instead. Rumor has it Edward really liked Diana, and when Charles's marriage hit the rocks, Edward often sided with his sister-in-law. What's even more intriguing is that Edward's future wife, Sophie,
looked a lot like Diana in her younger years. That's why many believe Edward had a crush on Diana and chose Sophie as a sort of stand-in. But that's just speculation. Edward and Sophie clearly have a strong, lasting bond. तो बिग सोचो में खुशामदीद। लेडी डियाना किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी अलमनाक मौत को 24 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में ये बरतानवी शहजादी आज भी जिंदा है। लेडी डियाना की शोहरत की सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है मलका एलिज़ाबेथ के बड़े बेटे और वली-ए-अहद शहजादा चार्ल्स से उनकी शादी ही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लेडी डियाना और इनकी फैमिली इस शादी से कबल मलका एलिज़ाबेथ की प्रॉपर्टी पर बने एक घर में रहती थी और लेडी डियाना ने शादी से कबल बतौर नर्सरी टीचर और बतौर नैनी भी काम किया था। यही नहीं बल्कि लेडी डियाना की दादी और नानी दोनों किसी ज़माने में मलका एलिज़ाबेथ की असिस्टेंट के तौर पर काम करती रही थीं। लेडी डियाना का ख़ानदान कई दहाइयों से ब्रिटिश अशराफिया का हिस्सा था, लेकिन 1981 के बाद लेडी डियाना की किस्मत की काया पलटी और इस शहजादी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आखिर वो इतनी मशहूर क्यों थी? शहजादी की असल वजह शोहरत सिर्फ वली-अहद की बीवी होना ही थी या कोई और वजह भी थी? शाही ख़ानदान का अहम रुकन होने के बायस शहजादी की जिम्मेदारियां क्या थीं? शहजादी की वफ़ात कैसे हुई और इसकी मुमकिना का पैदाइशी नाम डियाना फ्रांसिस स्पेंसर था और वो 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुई। उनका ख़ानदान बरतानवी शाही ख़ानदान का पुराना वफ़ादार था। यूँ कह लें कि उनका ख़ानदान शाही ख़ानदान के लिए काम करता था। इस तरह दोस्तों, जाहिर है लेडी डियाना का बचपन शाही ख़ानदान के बच्चों जैसा शानदार नहीं था। अलबत्ता इनकी फैमिली को ब्रिटिश नोबेलिटी यानी ब्रिटिश अशराफिया का हिस्सा होने की वजह से ख़ास मराआत हासिल थी। लेडी डियाना की शख्सियत शुरू ही से पुरकशिश थी। उनका मलका के महल में आना जाना होता था। अलबत्ता जब लेडी डियाना 7 बरस की हुई तो उनके वालिदैन में अलहदगी हो गई और वो अपने 1967 में वालिदैन की अलहदगी के बाद डियाना की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, अलबत्ता उन्हें पियानो बजाने, तैराकी और रक्स करने का शौक़ था। बल्कि डियाना बचपन में एक रक्कासा यानी डांसर बनना चाहती थी। 16 बरस की उम्र में डियाना ने पढ़ाई छोड़ दी। वो लंदन में अपनी वालदा के फ्लैट पर अपनी 2 दोस्तों के साथ रहना शुरू हो गई। दोस्तों, गुजर बसर के लिए डियाना ने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद एक स्कूल में बतौर असिस्टेंट भी काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ में मेज़बानी करके पैसे भी कमाए और कभी दूसरों के। डियाना शुरू ही से लेडी डियाना नहीं थी, बल्कि 1975 में जब उनके वालिद की तरक्की हुई यानी उनका रैंक बढ़ा तो तब डियाना फ्रांसिस को लेडी डियाना कहा जाने लगा। बरतानिया में ब्रिटिश नोबेलिटी में शामिल तमाम ख़ानदानों को ख़ास मराहत हासिल होती हैं और इन फैमिलीज़ के सरबराहान को कुछ टाइटल्स और रैंक्स दिए जाते हैं। लेडी डियाना के वालिद को अर्ल स्पेंसर का रैंक मिलने की मुनासबत ही से डियाना और इनकी बाकी 2 बहनों के नाम के साथ लेडी का टाइटल लगा दी। दोस्तों, प्रिंस चार्ल्स की डियाना से पहली मुलाकात 1977 में एक तकरीब के दौरान हुई। प्रिंस चार्ल्स उस वक्त 29 बरस के थे, जबकि लेडी डियाना महज 16 बरस की थी। दोनों की मंगनी फरवरी 1981 में हुई। लेडी डियाना की मंगनी की अंगूठी 18 कैरात के सफ़ेद सोने से बनाई गई थी। इस पर 12 कैरात का एक नीलम और 14 हीरे जड़े हुए थे। उस वक्त लेडी डियाना एक स्कूल में टीचर असिस्टेंट की नौकरी कर रही थी। मंगनी के बाद जाहिर है लेडी डियाना ने वो नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, लेडी डियाना बरतानवी शाही ख़ानदान की पहली दुल्हन थी जो इस ख़ानदान का हिस्सा बनने से पहले कोई मुलाजमत किया करती थी। जुलाई 1981 में डियाना और प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई। ये शादी की तकरीब तारीख़ के अहम तरीन इवेंट्स में से एक है। इस शादी को फेरी टेल वेडिंग का नाम दिया जाता है। शहजादी के शादी के लिबास को 10,000 कीमती पर्ल से सजाया गया था और इस शानदार लिबास की मालियत उस वक्त 9,000 पाउंड्स थी। कहा जाता है कि टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस जोड़े की शादी की तकरीब को 75 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि 6 लाख अफराद इस जोड़े की एक झलक देखने के लिए तकरीब के रास्तों पर खड़े हुए थे। शादी के बाद लेडी डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थी। इसके अलावा भी उन्हें 4 मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए। उन्हें बरतानवी शाही ख़ानदान की तीसरी आला तरीन खातून होने का एजाज़ भी मिल चुका था। पहले और दूसरे नंबर पर मलका और मलका की वालदा थी। दोस्तों, बहसीत प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डियाना को मुल्क की बहुत सी ऑफिशियल तकरीबात में शिरकत करना होती थी।
इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स करना और इनकी दावत पर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करना भी प्रिंसेस के फ़राइज़ में शामिल था। इस दौरान उन्होंने कई ममालिक के दौरे किए। लेडी डायना ने 1991, 1996 और 97 में यानी 3 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। उनके आखिरी 2 दौरे इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल। शौकत डायना को प्रिंसेस ऑफ पीपल्स यानी अवाम की शहजादी भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी वजह फलाही कामों में इनकी गैर मामूली दिलचस्पी थी। लोगों की बड़ी तादाद इनकी मद्दाह थी। ये आम सी बात है कि किसी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो और लोग इसे बहुत पसंद करते हो तो इसे फॉलो भी बहुत किया जाता है। लेडी डायना को इस बात का खूब अंदाज़ा था। 1988 में उन्होंने 191 मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की, जबकि 1991 में इन तकरीबात की तादाद 397 तक बढ़ गई। लेडी डायना ने बड़ी हद तक अपनी तवज्जो सेहत से मुतल्लिक फलाही कामों पर मरकूज़ कर रखी थी और वो कई फलाही तंजीमों से बराह रास्त मुंसलिक थीं। लेडी डायना के कारनामों में सबसे अहम इनका एड्स के मरीज़ों से मिलना था। वो न सिर्फ इनको विज़िट करती थीं बल्कि इनसे हाथ भी मिलाती और गले भी इन्हें लगाती थीं। शाही ख़ानदान का हिस्सा होने की वजह से आवाम के लिए तो ये बात काफ़ी अजीब थी कि प्रिंसेस डायना एड्स के मरीज़ों को विज़िट करती हैं। लोग एड्स के मरीज़ों के पास जाने और उन्हें छूने से कतराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि छूने से भी ये बीमारी फैलती है। प्रिंसेस डायना का ये दर्दमंदाना रवैया आवाम में बहुत मकबूल हुआ और प्रिंस चार्ल्स की शादी सिर्फ 15 बरस ही चल पाई। इस दौरान लेडी डायना ने 2 बेटों को जन्म दिया, यानी प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। इस शादी के टूटने की कई एक वजूहात बताई जाती हैं। दोनों की उम्र में 12 साल का फ़र्क था। ये भी कहा जाता है कि लेडी डायना की तबीयत में शर्मीलापन शामिल था और वो पब्लिक के सामने आने और तस्वीर बनवाने से कतराती थीं। डायना के शोहर प्रिंस चार्ल्स के कुछ और ख़वातीन से ताल्लुकात भी इस अलहदगी की वजह बताए जाते हैं, जिनकी वजह से मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा हुए। मलका एलिज़ाबेथ और डायना के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे और बाज़ ज़राए के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ डायना से नाराज़ रहती थीं और नहीं चाहती थीं कि डायना मीडिया को या लोगों को प्रिंस चार्ल्स के मुआशकों के बारे में बता दें। दोनों की अलहदगी अगस्त 1996 में हुई। अलबत्ता लेडी डायना को काफ़ी हद तक शाही प्रोटोकॉल ही मिलता रहा क्योंकि अब वो शाही ख़ानदान के वारसान की वालिदा थीं। अपनी वफ़ात तक वो मलका ही के एक अलग घर में रहीं। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स ने 2005 में अपनी एक दोस्त कैमिला पार्कर से शादी कर ली। उन दोनों के ताल्लुक